Hello students. Now today I am going to teach you about the synthesis. It is one of the chapters of grammar where the student of class 12th synthesis है क्या? What is the synthesis? Synthesis है क्या? Synthesis, what is synthesis? So now here is the definition of the synthesis. Synthesis is the opposite of analysis and it means the combination of a number of simple sentences into one new sentence, simple, compound or complex. According to P.C. Rain, as a grammarian, Rain and Martin, P.C. Rain and Martin, now they, according to P.C. Rain and Martin, synthesis is the opposite of analysis and means of combination of a number of sentences in simple number of sentences into one new sentence, simple, compound or complex. तो यहाँ है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना सिंथेसिस कहलाता है और एनालिसिस का जो होता है जो विच्छेद और विच्छेद का जो है मतलब संधि और विच्छेद होता है। तो एक तरह से सिंथेसिस हमारा संधि है और एनालिसिस जो है विच्छेद है। तो हम आज संधि के बारे में पढ़ें कि संधि जो है कैसे वाक्यों को जोड़ा जाता है। हाउ विल यू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन सेंटेंसेस इन अ सिंगल सेंटेंस. Many sentences has given in to make the combination of the sentences. At that time to follow and obey the rules of the synthesis. According to the rule, there are three types of the sentence. According to grammar, there is three types of sentence. There are three type of sentence. Three types of sentence. One, simple. First, simple. Second, compound. And third, complex. Now here are three sentences. First, simple, compound and complex. But at once to know that what is the simple and what is compound and what is complex. In simple sentence there is a single finite verb. In simple sentence there is a simple sentence. Simple sentence there is a single finite verb. Student, first to know that what is the finite verb, because if you want to know about the simple sentence, because I have written here in the simple sentence there is a single finite verb. So what is the finite verb? Finite verb means if the first to know that what is the number person of a subject. According to number person of a subject, verb should be according to the subject, number and person. Suppose the number and person of the subject is singular and person is third person, so the verb should be in singular and third person. So it is one of the example of the simple sentence, because in simple sentence there is a single finite verb and it is use of how will you make the combination of sentences. First, use of participle. First. Second rule, use of nominative absolute. Use of nominative absolute. Okay. And now third is use of noun or phrase in opposition or use of infinitive. First, use of infinitive. Okay. And fourth,
use of absolute phrase, use of noun or phrase in opposition, use of noun or phrase in opposition, or phrase in opposition. Okay. So now opposition, the use of noun or phrase in opposition. Next, use of preposition with noun or gender. Use of preposition with noun or gender. With noun or gender. Next, 6. By using adverbs or adverbial phrase. By using adverb or adverbial phrase. Adverbial phrase. Okay, adverbial phrase. Right. Now the seventh is one of the rules where by using adjective or a conjunction. By using conjunction. By using conjunction or adjectives. Okay. So all these are the first participle. Participle, what is the participle and how will you use the participle in synthesis? The use of participle. There are three types of the participle: present participle, past, present participle. Present participle जो है क्या होता है? First to know that what is the present participle. Participle जो है, participle क्रिया से बनता है. Participle is created by a verb. तो participle is created by a verb के द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है, और adjective और adverb. And does the work of adjective or participle is created by a verb and does the work of an adjective or adverb. So participle is created by a verb and does the work of an adjective or adverb. So for example, I saw a lady reading a book. For example, I saw a lady reading a book. Now I have given the example of present participle. I saw a lady reading a book. मैंने एक महिला को एक किताब पढ़ते हुए देखा. मैंने एक महिला को देखा. I saw किसको देखा? A lady. I saw a lady. मैंने एक महिला को देखा. Reading a book. किताब पढ़ते हुए. तो यहाँ पर पढ़ते हुए, किताब पढ़ते हुए ये हमारा पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है. सो इट इज सपोज गोइंग टू आगरा आई सा द ताज. जाकर आगरा, गोइंग टू आगरा आई सा ए ताज. So going to Agra, I saw the Taj. In this sentence, going to Agra, आगरा जाकर, कहाँ जाकर? आगरा जाकर. Now here is the participle because जाकर, और पढ़ते हुए, यहाँ now here is the participle reading,
and going to Agra. All these are the participle. तो पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है, जैसे जिसके अर्थ में कर या हुए होता है उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को जानने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में हमको आईएनजी जोड़ देना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? तो इसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ देना। समझ लो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए, ये इक्वल प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब इसका सेंस क्या होता है? जब वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, जैसे रीडिंग, गोइंग अगर लग जाता है तो ये सेंस जो है दो होता है, पढ़ते हुए या पढ़कर, कर या हुए, पढ़ते हुए, ये सेंस हो जाता है। जब आईएनजी जुड़ जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान के लिए इसका अर्थ होता है कर या हुए। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दो वाक्य दे रहा हूँ, आई सा a snack, I saw a snack. Second, I killed it. I killed. Okay. So now here I saw a snake, I killed it. So seeing a snake, I killed it. Seeing a snake, I killed it. मैं इसे मार दिया। सांप को देखकर मैं इसे मारा। तो ये सेंस जो है हमारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब में आईएनजी को जोड़ा जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल, नेक्स्ट हमारा पास्ट पार्टिसिपल का है। प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ा सा देख लें, और परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 पार्टिसिपल होता है। ये तो बहुत थोड़ा सा लंबा चौड़ा चलेगा, बट जल्दी से मैं बताना चाहूँगा। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है, परफेक्ट पार्टिसिपल में जो है हैविंग के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, सेकेंड परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल ये क्या है? हैविंग रहेगा और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैविंग रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। एक और परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हैविंग finished his work, he went to school. Having finished his work, he went to school. Now the work has finished. Now यहाँ पर एक कार्य समाप्त हो गया है। तो having finished his work मतलब हुआ कि अपना काम समाप्त करके वह स्कूल गया। तो नाउ हियर द वर्क हैज़ फिनिश्ड। सो जब काम जब समाप्त हो गया, जो परफेक्ट हो गया, तो फिर जो है हमारा कार्य जो है जारी हुआ कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। इट इज इन परफेक्ट पार्टिसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू हैव टू चेंज इन परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, you have to combine 2 or more than sentences according to the perfect participle. Second and third, the past participle. Students, past participle. Past participle. I was late, I was punished. तो I was late पास्ट पार्टिसिपल में याद रखने की
किसी पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है या किसी भी पूर्ण कार्य को, कंप्लीट वर्क को प्रदर्शित, इट शोज द कंप्लीटेड वर्क। कंप्लीटेड वर्क, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, he found his lost book. He found his lost book. He found his lost book. वह खोया हुआ किताब पा लिया। दूसरा चीज, I was punished. I was late. I was punished. If you want to combine both sentence according to the rules of the synthesis, so first to know that what condition of the given two sentences. I was late, I was punished. So here is condition of the past is creating, past condition is going on here. So according to the rules of the synthesis, you have to change it. Being late, I was punished. I was punished being late. I was punished. How? Being late. Being late. The being late, I was punished. देर से होने के कारण मुझे सजा दी गई। So this is the participle where I have taught you about the present participle, past participle, and perfect participle. Present, perfect, and past participle. But it is not enough for the synthesis of the combination of two or more than two sentences. There are different types of the rules, है ना। ओके, तो अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रूल्स होते हैं जो कि हमारे कॉम्बिनेशन में, सिंथेसिस में उसका यूज़ किया जाता है। जैसे इतना से ही नहीं हो, जैसे आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई, दो सेंटेंसेस, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। पर्स खो गया था और मुझे पर्स मिल गया। आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। अब चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे ही जम्प्ड अप, ही रन अवे, ही जम्प्ड अप, फर्स्ट सेकंड सेंटेंस, ही रैन अवे, ही रैन अवे, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। ओके, अब यहाँ नाउ हियर इज टू सेंटेंस। फर्स्ट ही जम्प्ड अप, वह उछला और वह भाग गया। अब इसको दोनों को जोड़ना है। हाउ विल यू कंबाइन बोथ सेंटेंसेस इन अ सिंगल सेंटेंस? तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल यू हैव टू कंबाइन बोथ सेंटेंसेस इन अ सिंगल सेंटेंस। जंपिंग अप, कूद कर, जंपिंग अप, कूद कर, जंपिंग अप, ही रैन अवे, जंपिंग अप, जंपिंग up, he ran away. अब देखा जाए कि the sense of both sentences are equal as the sense of a single sentence. First sentence, he jumped up, वह उछला, and he ran away, और भाग गया, कूद करके वह भाग गया। तो कूद कर वह कूदा और भाग गया, वह कूदा वह भाग गया। तो now here I have written here jumping up, कूद कर, and he ran away, वो भाग गया, he jumping up, he ran away. So it is in the present participle. Suppose कि if you want to change, he tired of play, he sat down to rest, he tired of play. First, he tired of play, he tired of play. First, he tired of play, वह थका हुआ, ठीक है, वो खेल से थका हुआ था। ही टायर्ड ऑफ प्ले, ही टायर्ड ऑफ प्ले, खेल से थका हुआ था। तो क्या किया? तो ही सेट डाउन टू रेस्ट। सेकेंड है ही सेट डाउन, ही सेट डाउन टू रेस्ट। नाउ कंबाइन बोथ सेंटेंसेज इन a सिंगल सेंटेंस। तो ही सेट डाउन, टायर्ड ऑफ प्ले, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, he tired of play, he sat down to rest. Now you have to change it
Now here you have to change being tired of play, he sat down to rest. Being tired of play, he sat down. He sat down. Okay? So now it is the condition of जैसे कि खेल से थका होकर वह आराम करने के लिए बैठ गया. वाज बी फॉर्म क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ वाज के लिए बी प्लस आई एन जी बीइंग का प्रयोग हुआ है वाज के सेंस में. ही वॉज टायर्ड, सॉरी ही टायर्ड नहीं है, ही वॉज टायर्ड है. नाउ हियर ही टायर्ड, ही यहाँ मैंने लिखा है कि ही टायर्ड ऑफ प्ले, यहाँ पर सेंस है वाज का सेंस है, ही टायर्ड ऑफ प्ले. तो ही सेट डाउन, तो यहाँ पर जब वाज का जो पास्ट का कंडीशन होता है तो वहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग जरूर करते हैं. जैसे मैंने कहा था आई वाज लेट, आई वाज पनिश्ड, बीइंग लेट आई वाज पनिश्ड. तो इस तरह से इसको ध्यान देना पड़ता है. जैसे मैं एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि आई सा अ लिटिल बॉय, ही वाज लुकिंग फॉर हिज मदर. आई सा अ लिटिल बॉय, आई सा a little boy, I saw a little boy. First. Second, he was looking his mother, he was looking his mother, तो I saw a little boy, he was looking his mother. तो यहाँ combine both sentences to make a single sentence. तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे. तो आई सा अ लिटिल बॉय क्या करते हुए, लुकिंग फॉर हिज मदर, वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर. तो अगर वीपिंग नहीं है तो लुकिंग फॉर हिज मदर. आई सा अ लिटिल बॉय लुकिंग फॉर हिज मदर. तो आई सा अ लिटिल बॉय, आई सा अ लिटिल बॉय लुकिंग फॉर हिज मदर, फॉर हिज मदर. ओके. तो मैंने एक बच्चे को देखा अपनी माँ को देखते हुए, अपनी माँ का जो है वो देखते हुए मैंने एक बच्चे को मैंने एक छोटा सा बालक देखा. अब तीन जैसे ही वाज लुकिंग फॉर हिज मदर, आई सा अ लिटिल बॉय लुकिंग फॉर हिज मदर. अगर मैं दे रहा हूँ कि आई सा अ लिटिल बॉय ही वाज वीपिंग, और तीसरा है कि ही वाज लुकिंग फॉर हिज मदर, तीन सेंटेंस में दे दिया. आई सा अ बॉय, आई सा अ लिटिल बॉय, ही वॉज वीपिंग, और थर्ड में है कि ही वॉज लुकिंग फॉर हिज मदर. तो आई सा अ लिटिल बॉय, ठीक है. ओके. आई सा अ लिटिल बॉय लुकिंग फॉर वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर. वीपिंग रोते हुए, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज मदर. तो तीन सेंटेंस को एक कंबाइन करके एक सिंगल सेंटेंस में बताया जा सकता है. वैसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल है बच्चों. जैसे मैंने कहा कि सरिता टुक हर फूड, सरिता वेंट टू स्कूल. तो हैविंग टेकन हर फूड, सरिता वेंट टू स्कूल. नाउ इट इज़ द पार्टिसिपल. आई हैव टॉट यू अबाउट द पार्टिसिपल. नेक्स्ट डे आई विल टीच यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूल्स of the synthesis. Okay.